In the last lecture we have studied about the properties of solid. हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि properties of solid क्या होती है. हमको पता है कि there are three kinds of matter: solid, liquid and gases. In solid, what is happening that the number of atoms are very much close to each other. In liquid, what is happening? The number of atoms are there is some difference. There is some separation between the number of atoms. And in case of gases, the intermolecular distance is very much higher. That's why the force of attraction between the molecule is negligible. So today's the topic of presentation is introduction to the semiconductor physics. As in our day-to-day life we are dealing with the current or the conductivity. Actually, why we are getting the current? Because we are getting the current. For the current we need the matter, and we are dealing here about the solid. So in solid the number of atoms are very much close to each other. That's why we are getting the current. So today's objectives of the session are to understand the difference between the conductor, insulator and semiconductor. Second objective is difference between forbidden energy band, valence band and conduction band on the basis of band theory of solid. Third objective is draw the band diagrams of the conductor, insulator and semiconductor. Fourth objective is write the difference between pure and doped semiconductor, and the last objective is enlist the types of semiconductor. So first of all, what is the matter? So matter consists of the three things: solid, liquid and gases. In solid, as I told you earlier, in the solid the number of atoms are very much close to each other. That's why the force of attraction is higher. And in case of liquid, the number of atoms are very much separated. That's why a liquid cannot maintain its shape. And in gases, gas doesn't have any shape or size. So what is the special about solid? That solid keeps its shape. उसकी शेप हमेशा डेफिनेट होती है. दिस इज द मैन-मेड ऑब्जेक्ट, दैट इज अ किंग क्राउन, एंड जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है. नेक्स्ट. So the main object is to concentrate on the solid structure. So the first diagram shows us the two-dimensional diagrams of the solid, and B and C diagrams are the three-dimensional diagrams of the solid. In case of solid, what we are seeing that each and every atom is affected by the presence of the nearest atom. हर एक एटम दूसरे की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो रहा है. And actually when we are seeing about the atomic structure, then what will happen? This is the nucleus and these are the orbits, because in atoms not all electrons are revolving in the one orbit. Each and every electron will be revolved in the different orbits, and that's why they will have some different energy levels. This is the illustrated diagram in which in nucleus there are two things. One is the proton and another is the neutron. Proton having the positive charge and electron having the negative charge. That's why the force of attraction between the proton and that electron. That's why the atoms will not disclose. Means the atom will be stays in the same thing. In this diagram we are seeing there are four electrons which are revolving in the outermost orbit, and that electrons are known as the valence electron. जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट के ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस कम रहेगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन नियर मतलब इनर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, है कि नहीं. नेक्स्ट, एंड वी हैव टू सी द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड. देखो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सभी सॉलिड्स में दो एनर्जी बैंड्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, मिनिमम दो मिल सकते हैं. अगर मैंने किसी सॉलिड में दूसरे सॉलिड को इम्प्योरिटी उसमें डाल दी, देन व्हाट विल हैपन, उसमें तीन भी बैंड्स बन सकते हैं. सो अगर मैं एटम्स केस में देखता हूँ तो एटम्स में आपको न्यूक्लियस दिखेगा सेंटर में, एंड उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे जो हर एक ऑर्बिट में से घूमते रहेंगे. अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, उसके बाद में 8 दिखेंगे, उसके बाद में इस तरह से आपके, एंड जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट रहेंगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मींस द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिवॉल्विंग इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स आर such electrons are known as the valence electron. अभी जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं. तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी एक बैंड बना लेंगे, एंड उस बैंड को बोलते हैं हम वैलेंस बैंड. मींस द बैंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंस बैंड. अभी क्या होगा कि अगर मेरे पास में कोई एक सिंगल एटम, दिस इज द सिंगल एटम, इसका अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, एंड दूसरा एक आपके पास में एटम है जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये है. अगर ये जहाँ पे एक न्यूक्लियस है इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द लास्ट ऑर्बिट. If some electrons are revolving in the orbit, अगर इस तरह से, then what will happen, ये इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है इस ऑर्बिट में भी चला जाए. Means the electron which are revolving in the outermost orbits may be shared by one or more atoms in the crystal. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम्स में से दूसरे एटम्स में जा सकते हैं. तो क्या होगा फिर इस तरह से, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी मिलेगी, बट सच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन, क्योंकि ये अभी फ्री नहीं है.
बिकॉज दे आर स्टिल रिवॉल्विंग। अगर इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा तो आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर आपके यहाँ से, अगर यहाँ पे आपका सोर्स है तो यहाँ से यहाँ तक आपके कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज द करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इसी में घूमते रहेगा आपको कभी करंट नहीं दे सकते, तो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। एंड क्या होगा कि इसके ऊपर एग्जैक्ट मतलब द बैंड व्हिच इज अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाएगी, मींस दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट द एनर्जी। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में अगर ऊपर में कंडक्शन बैंड है, अगर से इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दी, देन व्हाट विल हैपन? दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री एंड इट विल मूव टू द कंडक्शन बैंड। अभी ये इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चला गया एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड दैट्स व्हाई इट विल मूव इन दिस वे एंड इन दिस वे। इस तरह से आपको क्या मिलेगा? हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री होने के बाद में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के बाद की जो बैंड होती है, दैट इज द कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड में से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जाएगा। सो वैलेंस बैंड मींस व्हाट? द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट orbit are known as the valence electron, and the band formed by such electron is known as the valence band. And what about the conduction band? Conduction band is the above the valence band. मतलब valence band के ऊपर की जो band होती है, that is the conduction band. ये initially empty रहेगी, मतलब जब तक आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देते तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को जब आप फ्री हो जाएगा, मींस when electron will be free, then it will move to the conduction band and it will flow in this way, and that's why we are getting the current. Next. तो क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि सॉलिड्स में हम तीन चीजों को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। फर्स्ट इज द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इन सबके इसमें क्या रहेगी कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप रहेगी, एंड दैट गैप इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस गैप पे डिपेंड रहेगा कि आपका मटेरियल सेमीकंडक्टर है, कि आपका मटेरियल इंसुलेटर है, कि आपका मटेरियल कंडक्टर है। इन केस ऑफ कंडक्टर हमको पता है कि अगर ये कोई एक मटेरियल है, अगर एक कंडक्टर है, तो आपको इजीली इसमें से करंट मिलता है। एंड इजीली करंट क्यों मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों फ्री होता है? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर ये आपकी वैलेंस बैंड है, अगर ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में अगर जीरो गैप है, तो क्या होगा फिर आपको जस्ट मतलब जैसे आप रूम टेम्परेचर भी कंडक्टर को लेके आओगे, तो द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन द कंडक्शन बैंड। एंड जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई हमें जल्दी से ही करंट मिल जाता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या मिलेगा आपको? इंसुलेटर में करंट जीरो होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल टेक द मोर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी, एंड इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द कंडक्शन बैंड, देन द करंट विल बी फ्लो। दैट्स व्हाई इस एनर्जी को आपको ज्यादा एनर्जी देने की मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उस वजह से इन केस ऑफ इंसुलेटर वी आर नॉट गेटिंग द करंट। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का मतलब मॉडरेट थिंग है। इसमें क्या होता है कि द सेमीकंडक्टर इज द मटेरियल व्हिच विल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो दोनों की भी प्रॉपर्टीज को शो करता है। इंसुलेटर में आपको करंट जीरो मिलेगा, इन केस ऑफ कंडक्टर आपको करंट बहुत ज्यादा मिलेगा। सो आवर मेन टॉपिक इज द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो मतलब सेमीकंडक्टर इज द थिंग व्हिच विल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर एज वेल एज द सेमीकंडक्टर। तो पहले हम इंसुलेटर को देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर मींस द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउज द इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज द इंसुलेटर। उसके बाद में अगर हम कंडक्टर को देखते हैं तो मेनी मटेरियल्स सच एज मोस्ट ऑफ द मेटल्स अलाउज द इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम, दीस आर नोन एज द कंडक्टर्स। एंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है? इट इज द प्योर सिलिकॉन, इट इज द बेस मटेरियल ऑफ मोस्ट द ट्रांजिस्टर्स। आपको पता होगा ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, जो कि मोस्ट ऑफ द किस व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर? इट इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के लिए वो ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ये क्या होता है कि जो इसकी कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो हम वैरी कर सकते हैं। उसमें हम डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ा के या कम करके उसकी मतलब उसकी कंडक्टिविटी को वैरी कर सकते हैं। दैट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स में हम दो ही जो मटेरियल्स है दैट वी आर यूजिंग एज अ सेमीकंडक्टर, फर्स्ट इज द सिलिकॉन एंड अनदर इज द जर्मेनियम। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी जो एनर्जी बैंड है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, उन दोनों के बीच के जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हम देखते हैं, इनका जो एनर्जी गैप रहेगा दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये रहेगा आपका Ag इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एंड दूसरी चीज क्या रहेगी, जो आपका सिलिकॉन रहेगा उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ, क्योंकि जो करंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे देन दे विल बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जब तक आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक आपको करंट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ हम व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है कि ये इजीली अवेलेबल होता है, उसके बाद में चीप होता है। सेकंड क्या होता है कि इट इज हैविंग द अमेजिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड chemical properties, and another thing is that it is a material which is well known to the mankind. तो अभी हमको देखना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो there are two types of semiconductor. First is the pure semiconductor and another is the doped semiconductor. तो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जो पूरी तरह से प्योर है, जिसमें मैंने कुछ भी डोप नहीं किया। अगर ये मेरे पास में कोई सेमीकंडक्टर की चिप है, अगर ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें अगर मैं डोप कर देता हूँ तो ये फिर एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म में आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम को यूज करते हैं। डोप सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप, वन इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अनदर इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब ये देखो जो सेमीकंडक्टर होता है इट इज हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम कौन सा बोलेंगे फिर, इट इज नोन एज द टेट्रावैलेंट। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब टेट्रा। तो अगर मुझे कोई भी एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसको अगर मुझे करना है कन्वर्ट एन टाइप में, तो मुझे क्या डोप करना पड़ेगा, पेंटावैलेंट को डोप करना पड़ेगा। पेंटावैलेंट को डोप करने के बाद में क्या होगा, क्योंकि ये खुद में टेट्रावैलेंट है, मतलब इट इज हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझो कि मेरे पास में एक एटम है जिसका फॉस्फर या एंटीमोनी का लेता हूं, जिसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं डोप करूं तो हर टाइम पे मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि इसके जो मैंने डोप किया उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन, ये जो खुद में है इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, हर टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर यही मुझे सेमीकंडक्टर की चिप है, अगर मुझे ये पी टाइप में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या डोप करना पड़ेगा, आई हैव टू डोप द ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट करने की वजह से क्या होगा, आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर वक्त रहेगा, क्योंकि ट्राई के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल होता है। तो इस वजह से क्या होगा, फिर पी टाइप आपको सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, so summarization, in this session we have studied about the band formation in this solid, कि आपके 3 बैंड्स जो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज द वैलेंस बैंड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो जो बैंड बनाते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के एग्जैक्ट ऊपर में एक दूसरी बैंड होती है, दैट बैंड इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होती है उसी को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये हमने देखा। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर देखा। इन केस ऑफ कंडक्टर तो दोनों पे बैंड्स होती है, ओवरलैप होती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर जो बैंड गैप होती है वो काफी ज्यादा होती है, उस वजह से हमें इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो बैंड गैप होती है इट इज इन द रेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एंड प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब डोप सेमीकंडक्टर। डोप सेमीकंडक्टर्स के हमने 2 प्रकार देखे, एक देखा पी टाइप और दूसरा देखा एन टाइप। इन केस ऑफ पी टाइप में क्या होता है कि डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द होल, एंड होल का मतलब इट इज एक्सेप्टर टाइप। एंड इन केस ऑफ एन टाइप में क्या होता है कि हम जो भी कुछ डोपिंग करते हैं वो पेंटावैलेंट को डोप करते हैं। पेंटावैलेंट को डोप करने के बाद में आपको हर वक्त एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस वजह से इट विल बी it is having the negative charge and there is a large number of electrons, means electron is the donor, तो इसलिए वो डोनर की तरह एक्ट होगा। रेफरेंस बुक जो है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स बाय प्रोफेसर एम एन अवधन। सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स बी एन जोशी का, और असाइनमेंट है आज का ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।